Hello friends, today we will see a line clipping algorithm and that is Sutherland-Cohen algorithm. We have three line clipping algorithm. First is Sutherland-Cohen algorithm, another is midpoint algorithm and other one is the parametric equation of line, that is also a line clipping algorithm. So today we will study Sutherland-Cohen algorithm. What happens in Sutherland-Cohen algorithm, trivial testing of line is done to see whether the line is accepted or not. Or we can say a testing is done to see that whether the line lies inside the clipping window or it lies outside the clipping window or it lies partially inside the clipping window or partially outside the clipping window. So what is actually clipping? Like, this is our clipping window. Like if we say this is our clipping window and if we say this is our line, it has two endpoints. So if this line is lying completely, both the endpoints of the line is lying inside the clipping window, then we say that the line lies inside the clipping window. If the line is like this, so we can see that both the endpoints of the line lie outside the clipping window. So we say that the line lies outside the clipping window. And if the line is like this, P1 and P2, P1 point is lying inside the clipping window and P2 point is lying outside the clipping window. So this is basically partially clipping. Means the line lies partially inside and partially outside. So if we're going to clip this line, so we will remove this part and this will be the finally clipped line. So for this, to test this line, whether it lies outside, inside or partially inside, we have this Sutherland-Cohen algo. So here we divide, as you can see, we have divided a 2D space into 9 regions. Like one, first region, second region, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. This one is the window. Okay, this is the clipping window. So we have divided this 2D space into 9 regions. And इसमें हम क्या करेंगे, हर रीजन का एक स्पेसिफिक कोड होगा. ठीक है, हर रीजन का एक स्पेसिफिक कोड होगा. तो इसके लिए हम 4 बिट लेंगे, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट एंड 4 बिट. ठीक है, एंड बिट एट द राइट मोस्ट कॉर्नर मीन्स दिस वन. राइट मोस्ट कॉर्नर पे जो बिट होगी ना, दैट विल बी बिट 1 एंड देन बिट 2, बिट 3 एंड बिट 4. एंड नाउ थ्रू दीज बिट्स वी विल फाइंड द रीजन कोड. हर रीजन का हम एक कोड फाइंड करेंगे. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम एक रूल फॉलो करेंगे, LRBU रूल. ये जो है क्या रूल है कि क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड अप. मतलब हम स्टार्ट करते हैं क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट से, देन वी गो टू राइट, देन वी गो टू बॉटम एंड देन वी गो टू अपर पोर्शन ऑफ द क्लिपिंग विंडो. सो दिस इज द क्लिपिंग विंडो. वील फर्स्ट गो टू इट्स लेफ्ट. हम इसके लेफ्ट में जाएंगे और क्योंकि हमें 4 बिट्स चाहिए तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट बिट को हम सेट कर देंगे 1 एंड बाकी बिट्स को रखेंगे 0. क्लिपिंग विंडो के लेफ्ट में जाएंगे, फर्स्ट बिट को सेट कर देंगे 1 एंड बाकी बिट्स को रखेंगे 0. तो 1 0 0 0. नाउ अब हम विंडो के राइट वाले में जाएंगे, राइट रीजन में जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रूल लिखा है LRBU. तो विंडो के राइट रीजन में जाएंगे. हम यहाँ पे सेकेंड बिट को सेट कर देंगे 1 एंड बाकी सबको क्या रखेंगे 0. तो फर्स्ट बिट इज 0, सेकेंड बिट को सेट कर दिया 1, बाकी 0. अब हम क्लिपिंग विंडो के बॉटम में जाएंगे. अब हम यहाँ पे थर्ड बिट को सेट कर देंगे 1 एंड बाकी बिट्स रखेंगे 0. तो फर्स्ट बिट 0, सेकेंड बिट 0, थर्ड बिट इज़ 1 एंड फोर्थ बिट इज़ 0. अब हम क्लिपिंग विंडो के अप वाले पोर्शन पे जाएंगे
एंड फोर्थ बिट को सेट कर देंगे 1 एंड बाकी सारी बिट्स को क्या रखेंगे 0। अब अच्छे हमारे ये वाले पोर्शन, ये दिस इज अप एंड लेफ्ट, मीन्स हमें लेफ्ट बिट के अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट बिट को 1 रखना होगा एंड अप के अकॉर्डिंग फोर्थ बिट को 1 रखना होगा, बाकी 0 हो सकते हैं। अब हम इस वाले अगर पोर्शन को देखें तो दिस इज आर अप एंड दिस इज आर राइट, तो हमें फोर्थ बिट को 1 रखना होगा एंड हमें सेकेंड बिट को 1 रखना होगा। इफ वी लुक एट दिस पोर्शन, we will see that this is our right and this is our bottom, so we have to keep our third bit 1 and our second bit 1 and other we can keep 0. Okay, so let's just cut it. So we have to keep our second bit 1 and third bit 1 को सेट कर देंगे एंड बाकी सब 0। अगर हम ये वाला पोर्शन देखें तो ये हमारा क्या है बॉटम, लाइक थर्ड बिट को 1 रखना है और ये हमारा क्या है लेफ्ट, मतलब फर्स्ट बिट को 1 रखना है। तो फर्स्ट बिट को 1 सेट किया एंड थर्ड बिट को 1 सेट किया एंड बाकी सब 0। और ये जो हमारा विंडो फ्रेम होता है ये कम्प्लीटली 0 0 0 0 होता है। इसकी चारों बिट्स जो है इनिशियलाइजेशन होती है क्योंकि यहाँ से तो चारों बिट हमारी 0 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारी चारों बिट 0 होती हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारी चारों बिट 0 होती हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें ये सारे रीजन के कोड पता चल गए है ना। अब हमने ये सारे जितने भी हमने 9 रीजन्स हैं, वी हैव फाइंड द कोड ऑफ ईच एंड एवरी रीजन आई मस्ट से। सो नाउ वी विल कंसिडर सम केसेस। टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम जो है अब केसेस कंडक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब हम देखेंगे कि एक हमारी लाइन है P1 P2, इट इज़ लाइंग इनसाइड द विंडो। ये हमारी लाइन है P3 P4 और ये हमारी लाइन है P5 P6। ओके फाइन। सो अब हम पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं P1 एंड P2 का, ठीक है। हम देखेंगे कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ये लाई कर रहे हैं इनसाइड द विंडो और नॉट। अगर हम अब कोड देखें P1 का और P2 का, तो दोनों जो है कहाँ लाई कर रहे हैं, इस विंडो में लाई कर रहे हैं ना, जिसके कोड क्या है 0 0 0 0। तो P1 का भी कोड क्या हो गया 0 0 0 0 और P2 का भी कोड क्या हो गया 0 0 0 0। अब इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वी विल डू एंडिंग ऑफ दिस। तो फाइनली 0 to 0 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 ये 0 आए हैं सब कुछ। P1 एंड P2 का एंड करने पे 0 आया। तो फाइनली इसका मतलब क्या है कि हमारे जो P1 P2 हैं वो लाई कर रहे हैं इनसाइड द विंडो। अब हम देखेंगे इस वाले पॉइंट के लिए P3 और P4 के लिए, P3 एंड P4 के लिए देखेंगे। और इसके लिए कंडीशन है कि P3 एंड P4 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तभी हम मान सकते हैं कि जो पॉइंट है इट लाई आउटसाइड द विंडो। तो P3 और P4 हमारे किस रीजन में लाई कर रहे हैं, इस वाले रीजन में। तो P3 और P4 दोनों का कोड क्या होगा 0 0 0 0 0 1। सो हम अब P3 और P4 के कोड लिख देंगे 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इन दोनों का एंड करेंगे 1 1 1 होता है, बाकी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सो फाइनली आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक 1 आ गया ना, ये 0 तो नहीं आया। तो मतलब जो ये लाइन है इट लाइज आउटसाइड द विंडो। अब आता है हमारा लाइन दैट लाई पार्शली इनसाइड P5 एंड P6, ये वाली लाइन जो पार्शली इनसाइड लाई कर रही है। अब ये लाइन हमारी लाई कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है P5 ये लाई कर रहा है 0 1 0 0, इसका रीजन कोड ये 6th रीजन में लाई कर रहा है। ये वाला जो है P6 ये लाई कर रहा है 0 0 1 0, ये 4th रीजन में हमारा लाई कर रहा है ना। तो अब इसमें भी एंडिंग ऑपरेशन ही हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने P5 का कोड लिख दिया, यहाँ पे हमने P6 का कोड लिख दिया जो रीजन कोड है। अब इसकी एंडिंग करेंगे 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0, ये आ गया।
0। अब क्योंकि जो रीजन P5 और P6 जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, इनके रीजन कोड्स नॉन ज़ीरो हैं, बट इनके एंडिंग का रिजल्ट फाइनली ज़ीरो आ रहा है, सो ये मैच नहीं कर रहे आपस में। तो दिस बेसिकली टेल्स अस दैट जो लाइन है इट लाइज पार्शली इनसाइड, ये बताती है कि ये लाइन जो है पार्शली इनसाइड है, और यही ये एल्गोरिथम है। दिस इज बेसिकली सदरलैंड कोहेन एल्गोरिथम। This is all for today. Thank you for listening.